Morning, dear children. This is your Manjuma. Today we are going to start with a new chapter, that is lesson number 3. Topic is noun. Okay, beta, what the noun is? Nouns are naming words. In the earlier classes which we had through online, in that also I have explained, but still I am starting from the beginning because some students might are facing problem in those with online classes. So today we will start with nouns. Nouns are called naming words. But naming of words of whom? किसके name बेटा? All the names of animals, birds, insects, places, persons and things are naming words. Means everything which is in this world. Okay, whether a human being, animals, things, whosoever they present in this world, everything has a name. और उसी name को हम बोलते हैं naming words. I have written this in a notebook also. Nouns are also called naming words, or we can say nouns are naming words. All the names of animals, birds, insects, places, persons होते हैं, इंसान जो होते हैं, ठीक है, and things include all the clothing, the things we wear, the things which help us to study anything, है ना, just like pen, pencil, etc. are nouns. Just like I'm telling you the examples. See, the animals' name include rat, camel, lion, cow, whale, dolphin, wolf. Have you seen? I have included name of all the animals, whether the animals live the small animal creature or the largest one. It doesn't matter at all. Okay, whether it's live in on earth or in water. Okay, so all the animals has a name जिनको हमने animals पे डाला है. Birds include like sparrow, pigeon, parrot, ostrich, cuckoo is कोयल, ठीक है, peacock, hen, cock. Many more examples are there, but I've written only few of them to make you clear this thing. तो birds name also are nouns. Insects होते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक है. Insects includes like ant, housefly जो मक्खी हमारे घर में होती हैं उनको housefly कहा जाता है. bee, mosquito, wasp होता है बेटा आपका ततैया, आपने सुना होगा, ठीक है ना. Then butterfly, silkworm, etc. are the example of insects. See the places. Places include like house in which we live, the school where we study, the room. It can be any kind of a drawing room or the classroom or the dining room. It depends. Bedroom, hospital, country, park, bank. Person names include boy, girl, mother, doctor, uncle, principal, student, shopkeeper, prime minister, president, etc. and etc. Means everything. See, whether it's animal, birds, insects, places or person, everything has a name और उनका नाम मैंने लिखा है, and they are very uncountable in numbers. Many more are there, but I have written few to make you clear here because it's very difficult for me to write all the examples, so I have written only these here. See, includes the things में और कौन सी चीज़ें आती बेटा person? Things include all the clothing we wear, food that we eat, jewelry जो गहने होते, stationery that is used for study purpose, right? Just like pen, eraser, bank, notebook, shirt, skirt, scarf दुपट्टे को बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है बेटा. Bangles, ring, earrings, rice is a thing that we eat, food में use होता है. Juice, popcorn, sugar, tea, coffee, etc. Okay, these are the names of nouns. See, so have you seen here? So many examples I've written with animal, birds, insects, places, persons में and things में also. So all the things, whatever person, animal or thing is there on this earth, everything or every person has a name और उन्हीं को हम noun कहते हैं, उनके नाम को. Okay बेटा. Now see the kinds of noun. All the things, animals have some kind include. Okay, so the kinds of noun को कहते हैं types of noun. How many types of nouns are there in English? There are mainly 5 types of noun. How many types? There are 5 types of noun. That I have also written in the copy to make you clear. Kinds of noun. Nouns are mainly of 5 types. We can say there are 5 types of noun. The first is common noun, proper noun, collective noun, material noun,
and abstract noun. So repeat after me. Common noun, proper noun, collective noun, material noun, and abstract noun. Now all the 5 nouns I'm going to explain one by one to you to make you to differentiate between common, proper, collective, material and abstract noun. कि which noun comes under common noun, which nouns comes under proper noun, which are the names of collective noun, which things or comes into material noun, and what are abstract noun. Okay, so first of our topic is common noun. Sorry, out of this 5 today first I am going to explain common noun. Common का मतलब ही होता है सेम, अ कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, थिंग और एन एनिमल. ठीक है, ये कोई भी नाउन का एक कॉमन नेम दिया जाता है किसी भी, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो. इसको हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. इट इज़ द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन. कॉमन मतलब कॉमनली बहुत सारे पर्सनस बैठे हैं और उसका एक कॉमनली नाम बोलते हैं जिसको हम कह देते हैं पर्सन. पर्सन इज़ ऑलरेडी अ कॉमन. पर्सन जो मैंने नाम लिखा है ये भी एक कॉमन ही नाउन है. प्लेस जो लिखा है वो भी कॉमन नाउन है. एनिमल भी लिखा है, इट कैन बी एनी एनिमल, इट कैन बी एनी प्लेस, इट कैन बी एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है वो. तो कॉमनली नेम दिया जाता है. और थिंग ऑफ द सेम क्लास, एक ही जाति, या क्लास का मतलब है जाति. ओके, अगर वो मतलब डॉग है, सारे डॉग्स डॉग की क्लास से बिलोंग्स करते हैं. जस्ट लाइक आप मैं सभी ह्यूमन बीइंग है तो हम सभी पीपल की कैटेगरी से, क्लास से राइट रिलेट करते हैं, या कोई भी ग्रुप से. बट दैट इज वो सेम काइंड, एक ही जाति के होने चाहिए. जैसे कि डॉग, सारे डॉग्स डॉग की फैमिली से रिलेट करेंगे. काऊ, सारे काउस काऊ की फैमिली को रिलेट करेंगे. राइट, सारे जितने भी, जैसे पेंसिल एनिमल, ये थिंग है, ये थिंग की जितने भी पेन्स हैं उन सबको पेन्स की ही क्लास से रिलेटेड हम उसको करेंगे. ठीक है, कैटेगराइज. तो सी इट इंक्लूड्स ऑल द रिलेशंस. एज आई अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू, रिलेशन में हमारे जितने भी होते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, दैट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ कॉमन नाउन. राइट, एवरी पर्सन, कोई भी मैन है वो किसी ना किसी का ब्रदर होता है कि नहीं होता रिलेशन में. राइट, कोई ना कोई गर्ल किसी की सिस्टर भी होती है, मदर है ना, आपकी मदर भी हो सकती है सिस्टर, वो किसी की डॉटर इन लो भी हो सकती है. इन द सेम वे, सो ब्रदर, मदर, सिस्टर, डॉटर, सन, फादर, nephew, niece, grandfather, grandmother, etc. are the relations which we have with our family members या friend. friend भी आपका यहाँ पे relation में आता है. ठीक है, friendship, that is also the common noun. fine, all the genders, जो वो he हो या she हो, जिसमें commonly हम बोलते हैं boy, girl, man, woman, lady, gentleman, king, queen, प्रिंस, प्रिंसेस, ये जितने भी देखिए सभी पर्सन, जितने भी राजाओं के बेटे होते हैं उन सबको प्रिंस कहते हैं. और आप एक बात ध्यान रखेंगे, एवरी कॉमन नाउन हैड इट्स प्लूरल. आप इन्हीं सब वर्ड्स का प्लूरल बना के देखिए, आपको प्लूरल मिल जाएगा. जैसे ब्रदर का ब्रदर्स हो सकते हैं, मदर का मदर, सिस्टर का सिस्टर. मैनी मीन्स ऑल द गर्ल्स कैन बी द सिस्टर ऑफ देयर ब्रदर, राइट, और ऑल द ब्रदर्स कैन आर द ब्रदर ऑफ देयर सिस्टर्स. तो ये सारे रिलेशन हमारे कॉमन नाउन में होते हैं. ठीक है, देन प्रोफेशन, जो काम हम करते हैं, जो ही और शी, जो गर्ल और बॉय दोनों मिलके कर सकते हैं. राइट, उसमें जेंडर नहीं होता है, बिकॉज द सेम वर्क कैन बी जस्ट लाइक आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग जो, तो मैं टीचर हूँ. बट इट डजंट मीन कि जो वुमेन है वो टीचर ही वही टीचिंग करेगी. नो, अ मैन कैन बी द टीचर. अध्यापक उसका प्रोफेशन है. राइट, इंजीनियर, ड्राइवर, डॉक्टर, टीचर, leader, engineer, just like a businessman is also common noun. Serviceman, postman, banker, carpenter, cobbler, pilot, etc. etc. also the name of common noun. यानी कि जो common noun है उनका भी common name होता है. जैसे boy girl वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, men woman भी डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लेडी जेंटलमैन. राइट, तो आप देखिए common noun का भी, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन में होते हैं. ठीक है, तो all are common. See the example ऑफ प्लेसेस. प्लेसेस में जैसे सिटी जो शहर होते हैं, कोई भी सिटी, लॉट्स ऑफ सिटीज़ आता है, विलेजेस. ठीक है, पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल, एट्सेट्रा. सी एनिमल्स हियर, डॉग, लायन, कैट, हॉर्स, एलिफेंट आर द नेम्स ऑफ एनिमल. और द लॉट्स ऑफ डॉग्स आर देयर इन दिस ऑन दिस अर्थ. लॉट्स ऑफ लायंस आर देयर, मैनी कैट्स, मैनी हॉर्सेस, मैनी एलिफेंट्स. राइट, तो ये सब अपनी अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, अपनी अपनी क्लास से.
तो इनका प्लूरल होता है। थिंग्स में पेन का पेन, डोर, जितने भी पेन होते हैं उन सबको पेन किया जाता है, वैसे चाहे वो आपका रेनॉल्ड्स का पेन हो, चाहे वो आपका नेट्रास का पेन हो, डिपेंड्स करता है, सेलो का हो, राइटिंग में जो कंपनीज बनाती हैं, ठीक है। डोर, डोर चाहिए आपका स्टील का हो, किसी का भी उसको डोर ही कहा जाता है, राइट। चेयर, शर्ट, बेडशीट एट्सेट्रा आर द नेम ऑफ कॉमन नाउन, राइट। और एज आई टोल्ड यू, कॉमन नाउन ऑलवेज हैड्स इट्स प्लूरल फॉर्म। कॉमन नाउन का प्लूरल होता है, जैसे सिटी का सिटीज़, बिकॉज ये मैनी हो सकते हैं और कॉमनली एक नाम कहा जाता है, जस्ट लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, दीज आर द नेम्स। इनको हम कॉमनली एक नाम देंगे तो दीज नेम ऑफ कंट्रीज आर कंट्रीज कॉमन इन ऑल द नेम्स विच आई हैव गिवन हियर, राइट। तो कॉमन नाउन ऑलवेज हैड्स इट्स प्लूरल, उसका प्लूरल होता है, फाइन। नाउ अ सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन। बेटा प्रॉपर का मतलब ही होता है एक स्पेशल, कोई भी चीज़ होता है प्रॉपरली करना, उसका एक सही ढंग होता है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम और वी कैन से पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष, एक खास व्यक्ति का नाम जो दुनिया में पैदा हुआ है, उसका एक स्पेशल नेम रहेगा बेटा, ठीक है। जो प्लेस हो उसको बदला नहीं जा सकता, जस्ट लाइक यू एंड मी, आप सभी का एक स्पेशल नेम है, सेम एज हियर माई एंड ऑल्सो स्पेशल नेम दैट इज़ मंजू। तो सबकी जो आइडेंटिटी होती है वो उसके स्पेशल नेम से होती है एंड दैट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। उसका कभी भी सेकेंड पर्सन सेम प्लूरल में नहीं होता, बिकॉज वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी, हमारी खुद की पहचान है। व्हेन वी born in this world we were given a name, right, वो हमारी पहचान है, फाइन। तो वो एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम थ्रू आउट आवर लाइफ आफ्टर द एंड ऑफ लाइफ ऑल्सो। सो प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा एंड प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी भी देखो एनिमल्स में नहीं लिखा यहाँ स्पेशल, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का ही होता है, ठीक है ना। और ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन्स विथ कैपिटल, और प्रॉपर नाउन की खास पहचान है कि ये हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कैपिटल विद इट्स एन बिग लेटर, राइट। जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉपी, राइट। सी प्रॉपर नाउन एज आई टोल्ड यू आज व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब स्पेशल, it is the name of a particular special name which is always one of its type and that cannot be changed। वो किसी person का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, राइट। एंड इट इज़ ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर, हमेशा इसको कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। इट कैन नॉट बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स, कभी भी इसको स्मॉल में नहीं लिखा जाएगा। कॉमन इज़ ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स बट, और उसका प्लूरल होता है प्रॉपर नाउन, इट्स वन ऑफ इट्स टाइप, इसका कभी भी प्लूरल नहीं होता। जस्ट लाइक सी द एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन, इट डज नॉट हैव इट्स प्लूरल, इट इज़ सिंगुलर इन फॉर्म एंड इज़ वन ऑफ इट्स टाइप। ये अपने खुद की पहचान होते, इट इज़ शोज़ आवर ओन आइडेंटिटी। जस्ट लाइक सी द एग्जाम्पल, पर्सनस के नेम में स्पेशल नेम जैसे आपका और मेरा नाम है, सेम एज हियर जस्ट आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल to make you clear this. Just Ram Sharma, it's a name of a special name of a person. See Ram, so see the first letter, Saroj, Twisha, Hitesh, Monica, Prashant, Narendra Modi, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi, Samit Patra, lots of people are there, right? इस तरीके से ये आपके स्पेशल नेम होता है। हैव यू सीन हियर ऑल द नेम्स आर बिगिन with capital letter, first letter should of proper noun must be capital, right। ये तो मैंने आपको पर्सन्स के नेम बताए। स्पेशल में जैसे इंडिया, इंडिया इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, एक ही नाम है इंडिया, ऐसा तो ये बहुत सारे इंडिया नहीं हो सकते। इंडिया इज़ द स्पेशल नाम जो हमारे देश का ही नाम है, राइट। एवरी कंट्री हैज़ इट्स स्पेशल नेम। पंजाब इट्स अ नेम ऑफ अ स्टेट, है ना, स्पेशल। गोल्डन टेम्पल इट्स अ स्पेशल नेम ऑफ अ बिल्डिंग ऑल्सो। सी BMG मॉल, अगर मैं मॉल लिखती तो कॉमन, पर BMG स्पेशल तो वी गेट टू नो कि ये BMG है, ये आइडेंटिटी होती कि वेयर इट इज़, ये एग्जैक्टली हमें प्लेस में। हरिद्वार इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस ऑल्सो, ओके, होली सिटी। कैम्ब्रिज स्कूल, जैसे अगर मैं स्कूल लिखती तो कॉमन, लॉट्स ऑफ स्कूल्स आर देयर बट कैम्ब्रिज इज़ अ स्पेशल नेम जो स्कूल का नाम है। एयरपोर्ट, एनी एयरपोर्ट कैन बी देयर बट मैंने लिखा IGI एयरपोर्ट मीन्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज़ इन दिल्ली। तो वो IGI एयरपोर्ट दैट इज़ द प्रॉपर नाउन, मैंने उससे पहले उसको उसका नाम लिखा है। अगर मैं ओनली एयरपोर्ट लिखती दैट बी द कॉमन। लॉट्स ऑफ एयरपोर्ट्स आर देयर इन एवरी सिटी, वी हैव
एयरपोर्ट, राइट। तो सभी का एक नाम होता है, गॉट इट। सी द आई हैव रिटन द सम नेम ऑफ द कंपनी जस्ट लाइक फास्ट ट्रैक, जो घड़ियाँ बनाती हैं, राइट। वॉच जो है वो कॉमन नाउन है, बट उसकी अगर वो वॉच किस कंपनी की है वो उसके लिए प्रॉपर होगा। जस्ट लाइक टीवी है, वो आपका कॉमन है, बट वो किस कंपनी का, जस्ट लाइक सैमसंग का है, आपका LG का है, इन दैट वे, राइट। मारुति, इट्स अ नेम ऑफ अ कार कंपनी जो कार में डील करती है, तो कार इज़ कॉमन नाउन, उसका नेम इज़ मारुति, राइट। टाटा, जस्ट लाइक वीवो फोन, मिल्टन की बॉटल्स वी आर यूजिंग, सेलो, डॉम्स की पेंसिल वी यूज़। तो ये स्पेशल नेम भी होते हैं इनके, डॉम्स, अप्सरा, इन दिस वे, ओके बेटा। एंड प्रॉपर नाउन इज़ वन ऑफ इट्स टाइप, इसको कभी बदला नहीं जाता है, चाहे वो आपके किसी गांव का नाम हो, किसी शहर का नाम हो। जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ विलेजेस आर देयर, बट एक स्पेशल नाम बोल दिया मैंने शहबाजपुर खालसा, या मैंने बोल दिया कोई भी सहारनवास, कोई भी एक नेम होता है, गढ़ी बोलनी, दैट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ अ विलेज। तो गढ़ी बोलनी स्पेशल नेम ऑफ दैट विलेज, बट उसका कॉमन क्या है, विलेज, ओके। Okay beta, today you have to study only this much. In the next video we will discuss about collective and material noun. So first today you go through this video and try to understand the noun, what the noun is, how many types of nouns are there, and what are common and proper noun which I have explained here. Still you have any doubt, you can call me anytime. Till then, take care of yourself and goodbye.